Hello dear students, this is Ajaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we are going to study how to measure the blood pressure of a person. How to measure the blood pressure of a person. Let us see. This is a patient, my patient, and the patient suffers from let me see whether this person suffers from. अच्छा ये बताओ आप में से किसी को ब्लड प्रेशर है या नहीं है? नहीं है? फॉल्स, झूठ। आप सभी को ब्लड प्रेशर है, मुझे भी ब्लड प्रेशर है, क्योंकि अगर ब्लड में प्रेशर ही नहीं रहेगा तो ब्लड आगे कैसे बढ़ेगा ब्लड वेसल्स में, है ना। हाँ, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए लिमिट से, और ब्लड प्रेशर लो भी नहीं होना चाहिए जितना नॉर्मल है उससे। ब्लड प्रेशर हाई या लो होना प्रॉब्लम है, बट ब्लड में प्रेशर होना तो जरूरी है। विदाउट प्रेशर हाउ विल द ब्लड फ्लो फर्दर? सो सी, this is the patient and today we have to learn how to measure the blood pressure of a person. See, this patient, this is a piece of cloth which is called a cuff. It is a double layered piece of cloth. ये double layered piece of cloth होता है, दो layers होती है, and there is space between the two layers of the cloth. Two pieces of cloth have space between them, so that we can fill up air in between, the two pieces of cloth. So this is called the arm cuff or hand cuff. The patient, before measuring the blood pressure of a person, we have to ask the patient to sit on the chair and feel relaxed. Otherwise, momentarily blood pressure may increase. Do not say anything which will make the patient frightened or the patient will feel panicked. So let the patient feel relaxed, and the patient will sit on the chair. The patient's handcuff and his heart's position should be at the same level. The patient's heart and his handcuff should come at the same level. See, in such a way that if this is the handcuff and this is the heart, they should be at the same height. Don't measure the blood pressure doing the hand like this. So this is the arm cuff. We have to tie. There is a canvas over it. Stick it. Put the handcuff around the arm of the patient, and take care that if this is the elbow of the person, some people have this part, because in some people this part becomes black at the elbow. So see to it that the handcuff, the lower end of the handcuff should be nearly 1 to 2 inches above, or 2 fingers above the elbow से 2 उंगली या nearly 1 or 2 inches ऊपर लेवल पर हमें हैंडकफ बांधना होता है। उसके बाद हैंडकफ में से 2 पाइप्स निकलते हैं। If you really see, what is this device? I forgot to tell you. This is a sphygmomanometer. Wherever mercury is used, it is manometer. And sphygmomanometer is a device. It is also called BP apparatus. What is BP? Blood pressure. So BP apparatus. This is, so see what a sphygmomanometer is. It has a handcuff which is to be tied around the hand at the same height as that of the heart. It should be nearly 1 or 2 inches above the elbow level, and this cuff will have 2 pipes coming out from it. These the green colored pipes are shown here. One pipe will be up to this point, and this what should I say, this tray which will give the reading, it has mercury filled up in it. There is mercury inside it, and in the Greek language mercury is called hydrargyrum. That's why in short we say Hg. The Greek name or the Latin name of mercury is hydrargyrum, and we denote mercury by Hg. So there is a tray which has reading over it. One tube goes up to this point, and from the tray another tube comes out, or you can simply remember
one tube will come out from the cuff and it will go directly to the manometer. So this manometer has readings over it. This is, I have written 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. So it has readings in millimeters. 40 millimeter, 60 millimeter, 80 millimeter, 100 millimeter, 120 millimeter, and so on. And another tube comes out from the cuff and it ends at a bulb. There is a balloon-like structure, hollow balloon-like structure, and it has a metallic screw here. It has a screw. If we tighten the screw, अगर हम screw को tight कर देते हैं, तो air will not be able to come out of it. अगर हम screw को ढीला करते हैं, तो ये balloon में की air, ये cuff में की air बाहर निकलेंगी. To control the air in the cuff, this valve controls the air in the cuff. अब देखो ये पेशेंट को हमने बांध दिया एंड दिस इज द स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप के दो जो एंड्स होंगे, वी हैव टू पुट दोस टू एंड्स इन आवर ईयर्स एंड वी हैव टू लिसन केयरफुली. तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम. पेशेंट को ऐसा बांध दिए, द पेशेंट इज फीलिंग रिलैक्स. नाउ वी विल कंप्रेस द बल्ब. ये जो बल्ब है, ये जो बलून है, इसको हम कंप्रेस करेंगे बार बार. हमारे इस बलून को कंप्रेस करने से क्या हो रहा है? एयर इज बीइंग फिल्ड इन द कफ्स. कफ में एयर भर रही है और एयर भरने से क्या हो रहा? द ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज, द ब्रैकियल आर्टरी, यहाँ से जो आर्टरी आ रही है ब्लड को लेकर, हार्ट से जो ब्लड यहाँ आ रहा है, तो हार्ट से आने वाले ब्लड में प्रेशर है और वो प्रेशर हमको इसको कंप्रेस करते जाना है. वी हैव टू फील इन एयर इन द आर्म कफ. इसको हम दबाते जाएंगे और ये उससे क्या होगा? जैसे जैसे हम इसमें एयर भरेंगे कफ में, तो एयर टाइट हो, ये कफ टाइट हो जाएगा एंड देन आफ्टर सम टाइम इट विल होल्ड द आर्म, इट विल होल्ड आवर आर्म टाइटली. कफ जो है वो टाइट बन जाएगा हमारे आर्म पर. यहाँ मजबूती से ये हमारे आर्म को दबा देगा और हमारे हाथ को इतनी मजबूती से दबा देगा कि यहाँ जो ब्लड वेसल है वो भी दब जाएगी और वो चोक हो जाएंगी. ब्लड वेसल बंद हो जाएंगे, प्रेशर के कारण वो दब जाएंगी. अब इधर से जो हार्ट से जो ब्लड आ रहा उसका प्रेशर और हमने जो एयर भर दिया कफ में, उन दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया. तो हमारे कफ का प्रेशर इतना बढ़ गया, कफ ने इतने जोर से दबा दी ब्लड वेसल को कि ब्लड वेसल दब गई और उसमें से ब्लड आगे नहीं आ रहा. द ब्लड फ्लो हैज स्टॉप्ड. और जब ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया तो हमने इधर मर्क्यूरी मैनोमीटर में देखा, तो ये हमारे इसमें कफ प्रेशर बता रही है. तो ये प्रेशर कितना हो गया? हमने जो इसको दबा दबा कर इसमें एयर भरी, तो तब एयर इसमें प्रेशर हो गया था, कफ का प्रेशर था 180, बल्कि वो ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा है, 180 हो गया. वी हैव टू कंप्रेस द बल्ब until the mercury rises to a height of about 180 mm. 180 mm तक मर्क्यूरी जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक एयर भरते रहो. लेकिन एयर भरने से पहले याद रखना, स्क्रू को टाइट कर लेना है. स्क्रू टाइट करना है, एयर भरते जाना फुस और ये फिर रीडिंग बढ़ते 180 तक चला जाएगा. ठीक है. अब यहाँ स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, कान से हम सुन रहे हैं. स्टेथोस्कोप कहाँ रखा जाता है? स्टेथोस्कोप ये यहाँ रखना है हमको, एकदम एल्बो के इस साइड एल्बो है तो उसके ऑपोजिट यहाँ पर. ठीक है. और पूरा जो स्टेथोस्कोप का जो पूरा गोल सर्कल है, वो पूरा सर्कल यहाँ टच होना चाहिए. कॉम्प्रेस उसको स्टेथोस्कोप को अच्छे से दबा के लगाना यहाँ पर और कान में सुनना. तो जब ये 180 तक आ जाएगा तो यू विल हियर नथिंग. आपको कोई भी आवाज नहीं आएगी. स्टेथोस्कोप में कोई आवाज नहीं आएगी. आवाज क्यों नहीं आ रही मालूम है? क्योंकि ब्लड फ्लो रुक गया है. हमने कफ में इतना प्रेशर भर दिया, कफ में इतनी हवा भर दी हमने कि ये यहाँ का ब्लड वेसल रुक गया है, चोक हो गया है, दब गया है और ब्लड फ्लो बंद हो गया. अब ब्लड फ्लो के बंद होने की वजह से क्या हुआ? यहाँ इधर से हार्ट से ब्लड आ रहा है लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा. ब्लड रुक गया है. एक डैम में जैसे पानी जमा होकर ठहर जाता है, वैसे यहाँ पर पानी रुका हुआ है, ब्लड रुक गया है. ब्लड वेसल हमने दबा दी है उसको. ठीक है. तो यू विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड इन द स्टेथोस्कोप. आपको स्टेथोस्कोप में कोई आवाज सुनाई नहीं देगी. अब क्या करना है? और रीडिंग कहाँ पहुंच गई? 180. जब हमने 180 तक इसको कंप्रेस किया तो अब ब्लड प्रेशर की आवाज आपको ब्लड फ्लो की आवाज आपको स्टेथोस्कोप में नहीं आ रही. नाउ स्लोली धीरे धीरे ये स्क्रू को ढीला करो. जैसे जैसे आप ये स्क्रू को ढीला करोगे तो कफ में जो भरी हुई एयर है
वो यहाँ आके इसमें से निकल जाएगी, स्क्रू में से एयर धीरे धीरे निकलेगी। जब ये एयर निकलेगी तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कफ का प्रेशर, जो कफ ने हमारे हाथ को टाइट बांध लिया था, अब वो थोड़ा ढीला 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 होने लगेगा। तो कफ ढीला ढीला होगा तो धीरे 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 ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा तो एक तो ये है कि हम प्रेशर, यहाँ से एयर निकल जा रही तो प्रेशर, कफ का प्रेशर कम हो जा रहा, कफ का प्रेशर कम हो जा रहा तो मर्क्यूरी का लेवल नीचे नीचे आएगा। इट फ्रॉम 180 इट विल कम टू 160, थोड़ी देर बाद 160 में आएगा, फिर हवा निकालते रहो, फिर और कम होता रहेगा, फिर और एयर निकालते रहो, और जब आपको आवाज सुनाई दे फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये स्क्रू को ढीला करते समय कफ का प्रेशर कम 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 होता जा रहा है, ठीक है, 180 से 160, 140, 120, और जैसे ही अगर ये नॉर्मल पेशेंट है तो जैसे ही यहाँ का रीडिंग 120 आएगा और स्टेथोस्कोप आपके कान में लगा है तो आपको अचानक से जोर जोर से आवाज सुनाई देगी, लब डब कराओ क्रॉफ्ट, कराओ क्रॉफ्ट, कराओ क्रॉफ्ट। कराओ क्रॉफ्ट इज लब डब एक्चुअली। जब हार्ट कॉम्प्रेस होता है, ब्लड को प्रेस करता है, ब्लड को प्रेशर से ऊपर भेजता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब, तो उस समय हमारा हार्ट जो आवाज करता है, जो साउंड हमको स्टेथोस्कोप में सुनाई देती है, दैट साउंड इज लब। और फिर क्या होता है, ब्लड गोज टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड जब एट्रिया में आते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हार्ट, ह्यूमन हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, so contraction of the ventricles, contraction of the muscles of the heart, contraction of the muscles of the heart is called systole. The contraction of the muscles of the heart is called systole, and the relaxation of the muscles of the heart is called a diastole. तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस समय लब करके साउंड आती है, LUV लब। और जब वेंट्रिकल्स डायलेट होते, जब फूलते हैं तो हमारी आवाज आती है डब। तो इस तरह ऑल्टरनेटली लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसी आवाज आती है। और कितने बार आती है, तो 72 टाइम्स। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो अभी डरा हुआ भी नहीं, जिसको कोई बीमारी नहीं है, एकदम 100% नॉर्मल पर्सन है, उसके हार्ट का हम अगर स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं तो ऑल्टरनेटली एक लब एक डब, एक लब एक डब, ऐसे 72 लब सुनाई देंगे हमें और 72 डब, यानी लब डब, ये वन हार्ट बीट, वन लब एंड वन डब इज कॉल्ड वन हार्ट बीट। सेकंड लब सेकंड डब 2 हार्ट बीट्स, थर्ड लब थर्ड डब 3 हार्ट बीट्स, लब डब 4 हार्ट बीट्स, लब डब 5, लब डब 6, लब डब 7, ऐसे 72 टाइम्स होगा एक 1 मिनट में नॉर्मल कंडीशन में। तो जब हार्ट हमारा सिस्टोली होता है तो जैसे ही यहाँ से देखो सिस्टोली हुआ, ब्लड को प्रेशर से भेजा हार्ट ने, और हमने कॉम्प्रेस इसको खोल दिया था, कफ को ढीला कर दिया हमने, तो जैसे ब्लड फ्लो सर्कुलेशन चालू हो जाएगा तो हमको जोर जोर से लब डब आवाज सुनाई देगी स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप हम अपने कान में लगाकर आवाज सुनेंगे लब डब। तो जिस समय आपको लब डब आवाज सुनाई दे तो क्विकली लुक एट द मैनोमीटर रीडिंग। तो मैनोमीटर की रीडिंग देखो। सो इफ दिस इज अ नॉर्मल पर्सन एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो आपको लब कहाँ सुनाई देगा, लब डब कहाँ सुनाई देगा, लब डब 120 पर सुनाई देगा। दिस इज आइडियल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट लब करता है तो लब डब करता है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 आइडियल होता है, 120 mm ऑफ Hg। अब क्या करोगे आप, ब्लड सर्कुलेशन चालू ही है, इतना सारा ब्लड रुक गया था पहले, है ना, चोक हो गया था। अब जैसे हमने इसको ढीला कर दिए, स्क्रू खोल के कफ को लूज कर दिए, तो ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया। ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया तो ब्लड के फ्लो होने की आवाज आ रही, एकदम प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा विद मैक्सिमम प्रेशर। और वो मैक्सिमम प्रेशर कितना है, 120 है मैक्सिमम प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो दिस, जब आपको आवाज आना चालू हो जाती है पहली बार, पहले तो इतना 180 तक टाइट कर दिए थे तो ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गया था,
फिर ये स्क्रू ढीला किए तो ब्लड सर्कुलेशन चालू हुआ, और जब ब्लड सर्कुलेशन चालू हुआ तो जब आपको आवाज आई पहली बार लब डब लब डब लब डब लब डब, तो जब आपको आवाज आई दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और वो आवाज नॉर्मली आपको कब आती है? 120। हाँ, अगर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो आपको 140 पे लब डब आवाज आना चालू हो जाती है। या और हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है, बहुत ही प्रॉब्लम वाला केस है, 160 पर लब डब आवाज आना चालू हो जाती है। बट नॉर्मल पर्सन में 120 या 110 पर लब डब आवाज आती है। सबसे बेस्ट ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120। तो लब डब आवाज आ रही, अभी भी स्क्रू को ढीला करते रहो, प्रेशर विल गो डाउन 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 डाउन, और जब ये 80 तक पहुंचेगा, नॉर्मल पर्सन में जब ये 80 तक पहुंचेगा तो आपको आवाज आना बंद हो जाएगी, नो साउंड, फिर से आवाज नहीं आएगी। यहां तक भी क्या था, ऊपर जब आपने 180 किए तो देयर वाज नो साउंड, क्योंकि नो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था। अब यहाँ रैपिड ब्लड फ्लो हुआ, रैपिड ब्लड फ्लो हुआ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और उसके बाद 180 के बाद से क्या हो रहा? फ्री फ्लो, ब्लड का फ्लो फ्रीली हो रहा है। यानी अब इतना कफ ढीला कर दिया आपने कि ब्लड आसानी से चुपचाप चले जा रहा है, कोई आवाज नहीं कर रहा। तो जब आवाज चालू हो गई लब डब, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फिर 100 पर भी आपको लब डब सुनाई देगा, 90 पर भी आपको लब डब सुनाई देगा, और 80 पर लब डब आवाज आना बंद हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक बीपी। सो जब आवाज चालू हो गई लब डब, सबसे पहले कफ बहुत टाइट रहेगा तो आवाज नहीं आएगी। जैसे ही लब डब आवाज सुनाई देना चालू हो गई, स्टेथोस्कोप में समझ जाना इट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर प्रेशर कम करते जाओ, स्क्रू ढीला करते जाओ, तो भी आपको लब डब आवाज आएंगी, लब डब आवाज आएंगी। और कब तक आएंगी? जब तक ये 80 ना हो जाए। जब ये 80 हो जाएगा तो आवाज आना बंद हो जाएगी। अगर 80 पे आवाज आना बंद होगी तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, 80 mm ऑफ Hg है ना। बट अगर ये हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो 100 पर आवाज आना बंद हो जाएगी, 100 पर आवाज आना बंद हो जाएगी। अगर आपको लब डब आवाज 120 पर आ रही थी और 100 तक लब डब आवाज है और 100 के बाद लब डब आवाज आना बंद होगी, तो समझ जाओ ये पर्सन का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 है, यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। फिर वो अगर ये 140/90 के ऊपर हो तो समझ में आया। जब आवाज आना चालू हो लब डब तो दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जितनी भी रीडिंग पर आवाज बंद हो जाए आना, नीचे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नीचे जितनी रीडिंग पर आवाज आना बंद हो जाए दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर? बेस्ट नॉर्मल बीपी, मैं आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। बेस्ट नॉर्मल बीपी इज 120/80 mm ऑफ Hg। व्हाट डज दैट मीन? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेस्ट वाला 120 होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है। mm यानी मिलीमीटर में रीडिंग है, ये mm में होता है। मर्क्यूरी कितने हाइट तक चढ़ रहा है, कितने मिलीमीटर हाइट तक चढ़ रहा है ऑफ Hg, Hg इज मर्क्यूरी, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हाई बीपी किसको बोलते हैं? हाई बीपी का मतलब होता है 140/90 से ज्यादा। हाई बीपी मींस high BP is greater than 140/90 mm of Hg। और लो बीपी किसको कहते हैं? सो लो बीपी इज लेस देन 100/60 mm of Hg। तो दिस इज लो ब्लड प्रेशर। कौन सा ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक होता है? हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा डेंजरस है या लो ब्लड प्रेशर ज्यादा डेंजरस है? तो रिमेंबर, हाई ब्लड प्रेशर इज मोर हार्मफुल देन द लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो हो रहा तो दिमाग की नस फट सकती है,
इट कैन लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो। हार्ट अटैक मतलब हार्ट फेलियर भी हो सकता है, बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा हो तो। और दूसरी बात है कि किडनी में एकदम हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा, लंग्स में एकदम हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा, तो इट कैन डैमेज किडनीज, इट कैन डैमेज अदर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। तो एंड हाई ब्लड प्रेशर इज अ क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक, इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो क्रॉनिक यानी ये लंबे समय तक चलता रहता है। हाई ब्लड प्रेशर के कई पेशेंट्स होते हैं, एक बार हो गया तो वो अब जिंदगी भर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट ही बने रहते हैं। हाँ, दे कैन कंट्रोल देयर ब्लड प्रेशर बाय हैविंग सिंगल टैबलेट अ डे। जनरली डॉक्टर्स लोग एक टैबलेट देते हैं एक दिन की खाने की। ज्यादातर टैबलेट्स के नाम टेल्मा से चालू होते हैं, TELMA, टेल्मा, टेल्मीसार्टन, टेल्मीकाइंड, टेल्मा 40, ऐसे टेल्मा नाम से बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है। तो वो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए होती है। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए रोज टैबलेट खाते रहना पड़ता है, तो उससे ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो अगर हमें बहुत डिहाइड्रेशन हो गया, किसी को लूज मोशंस हो गए या पानी नहीं पी पाए बहुत समय से, तो इसके कारण ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो हमारी बॉडी में शुगर एंड सॉल्ट का प्रोपोर्शन, ऑस्मोरेगुलेशन बैलेंस बिगड़ जाए तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, मार्केट में मिलता है 4 रुपए का, 17 रुपए का, 17 रुपीज वाला, 4 रुपए वाला भी छोटा मिलता है। तो इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में डाल के जल्दी से पिला देना चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। और या तो फिर घरेलू इलाज ये रहता कि 1 गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच शक्कर डाल दो, थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट NaCl डाल दो, उसको मिला लो और थोड़ा थोड़ा 2 घूंट 4 घूंट 2 घूंट 4 घूंट वो पियो, या एक साथ भी पी लिए तो नो प्रॉब्लम। उससे फिर आपका ब्लड प्रेशर जो लो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए टैबलेट्स जनरली नहीं मिलती है, उसके लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर या नमक शक्कर का घोल, ORS, रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी हम ले सकते हैं। उससे ब्लड प्रेशर लो से नॉर्मल पर आ जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट्स मार्केट में बहुत सारी मिलती है। तो दिस वाज हाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। ठीक है, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ एक आध मैं वीडियो मर्ज कर देता हूं, ताकि आपको वो उसमें रियल लाइफ प्रैक्टिकल करते हुए दिखाई देगा, तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे।